Okay, so we'll start with inequalities and modulus. So in inequalities, we are having two types of inequalities, a linear inequality and a quadratic inequality. So that is what we are going to do. So linear inequality, matlab, jaise we have studied linear equations, right? Similarly, we study linear inequalities. Say for example, let's say we did this equation x, let's say, okay, we have a equation 2x plus 3y is equal to 4. This is a linear equation, right? And if you plot a graph, you will get a straight line. And if you have another equation, let us say, 5x minus 9y is equal to, let's say, 10. This is another linear equation. And if you, plot a graph of this, you once again will get a straight line. And the point of intersection becomes the solution. That is what we have already studied, right? Now, what if this question has been changed to 2x plus 3y is greater than 4? That is a question possibility. Greater than or equal to 4. So these are the questions that we can solve, right? But before we really start this, there are certain conditions that I want you to understand in terms of inequality. For example, if A is greater than B, let us say A is greater than B. If I add certain quantity K on both the sides, will the inequality change or remain same? Remain same. Okay. If A is greater than B, I subtract K from here, K from here, will the inequality change or remain same? What if the K is greater than A? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? If K is greater than A, मतलब ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या करोगे आप? इनइक्वालिटी चेंज. क्यों? क्योंकि साइन बदल जाएगा इसलिए नहीं होगा. जैसे कि 2 is greater than 5 फॉर एग्जांपल. अगर -1 किया वंस अगेन, let's say 5 was greater than 2, -1 किया तो 1 is 4 is greater than 1, no problems. But what if I say, जो मैं ये कह रहा हूं कि 2 is less than 5, मान लेते हैं -7 और यहाँ पर भी मैंने -7 किया, तो होगा क्या? ये कितना बनेगा? -5 और ये कितना बनेगा? -2. क्या इनइक्वालिटी बदलेगी? Despite the fact that both the sides has become negative, but the inequality will not change. That means in inequality, when you add something on both the sides, you subtract something on both the sides, even if the sign changes, your inequality does not change. That is one thing. Secondly, if I say A is greater than B, if I multiply any value by K, will the inequality change? It will not change only if K is positive. But it will change if K is negative. For example, we know 5 is greater than 2. You multiply by 3, your inequality does not change. 15 is greater than 6. But we know 5 is greater than 2. If I multiply by -3, you will have -15 and you will have -6, inequality changes. When you multiply by negative quantity on both the sides, your inequality will change. Will it change in any other case? Okay. If you divide by negative, then also it changes, because division by negative is nothing but reciprocal करके multiplication by negative. So multiplication by negative or division by negative will change the inequality. Any other way inequality changes? In any other condition will inequality change? साइन चेंज मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ से तो ही तो साइन चेंज होंगे. डिवाइड कर दिया वो भी तो हो, मान ही लिया. मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव क्वांटिटी से क्या इनइक्वालिटी बदलेगी? उसके अलावा बदलेगी? उससे भी कोई तो भी बदलेगी. मान लेते मैंने कहा 3 is greater than -2. If you multiply by 5, you multiply by 5. It does not change because positive से multiply, because 15 will still be greater than -10. But we know that 3 is greater than -2. If I multiply by -5 and if I multiply by -5, what do you get? -15 and this is +10. तो माइनस मल्टीप्लाई के इनइक्वालिटी बदलेगी.
चाहे दोनों तरफ नेगेटिव हो, दोनों तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों तरफ क्या है। अगर दोनों तरफ हमने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है या नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड किया है तो मेरी इनइक्वालिटी बदलेगी ही। स्क्वायर के केस में नहीं। अब अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, यू आर रेजिंग इट टू द नेगेटिव पावर, तो इनइक्वालिटी बदलेगी। नेगेटिव क्वांटिटी है एंड यू आर रेजिंग इट टू द इवन पावर, तो भी इनइक्वालिटी बदलेगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं मैंने कहा 5 इज ग्रेटर देन 3, आई एम रेजिंग इट टू द पावर ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तो बन जाएगा 1/5, ये बन जाएगा 1/3, इनइक्वालिटी बदल गई। समझ में आ रहा है? नेगेटिव पावर रेज कर दिया तो हमेशा इनइक्वालिटी चेंज होएगी, लेकिन अगर पॉजिटिव पावर कर दिया तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव है, वो पावर नेगेटिव करोगे तो इनइक्वालिटी पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव हैं, नीचे वाली नेगेटिव्स हैं, अब आपने इसको इवन पावर कर दिया तो क्या हो जाएगा? +9 +25, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऑड पावर कर दिया तो सेम रहेगी। अब ये रट्टा नहीं मार सकते, लॉजिक एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा। वैसे तो समझ आता है, आ ही रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पावर इवन पावर लेने से नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, इनइक्वालिटी बदल, यानी कि जब नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, तो हमें इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है तो नहीं, मल्टीप्लाई करके या रेजिंग टू द पावर करके तो इनइक्वालिटी बदलेगी। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये है हमारी। मतलब पावर में, मल्टीप्लाई में है क्या? मुझे समझ नहीं आया। -5 की पावर -1, अच्छा हाँ। तो अगर हमने किया है -5 इज लेट अस से ग्रेटर देन -6 मान लेते हैं, ठीक है, और हमने कर दिया पावर -1 पावर -1, तो ये बन जाएगा 1/-1/5 और ये बन जाएगा -1/6। ठीक है, तो अगर आइडियली 1/6 की वैल्यू छोटी है, आइडियली छोटी होनी चाहिए, लेकिन माइनस करने पे ये वैल्यू बड़ी, पावर नेगेटिव कर दिया ना, इनइक्वालिटी बदल गई। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? तो ये साइन चेंज इनइक्वालिटीज की है। क्लियर है? इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो गया। अब मैं आता हूं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। इस पे ये दोनों क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं हमें ये सॉल्व करना है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बनेगी 4/3, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू बनेगी 2 0, ये एक पॉइंट हो गया, और 0 4/3 मान लेते हैं ये 1 है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन बन रही है वो मोटा मोटा ये बन रही है। ठीक है, now all the points which lie on this line are solution of this equation। इस पॉइंट पे, इस लाइन पे होने वाली सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2x + 3y इज ग्रेटर देन 4, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? तो मेरा सॉल्यूशन होगा इस लाइन के या तो ऊपर होगा और या तो नीचे होगा, या तो लाइन के ऊपर होगा या लाइन के नीचे होगा। अब ऊपर, अभी आते हैं उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा ऊपर है या नीचे? ओरिजिन टेस्ट से।
किससे पता चलेगा? ओरिजिन, ओरिजिन यानी ये 0 0। हमें ये देखना है कि 0 0 मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं है। मतलब मैंने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 4। क्या ये बात सही है? नहीं। इसका मतलब 0 इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सॉल्यूशन। 0 लाइन के नीचे या ऊपर है? तो इसका मतलब लाइन के ऊपर वाले सारे, ये मेरा सारा सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट लाइन जा रही है, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदी आएंगी वो सारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ रहा है? इस लाइन के ऊपर जितनी भी बिंदी आएंगी वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेंगे। दैट इज वन। क्लियर है यहाँ तक बात? अब क्वेश्चन ये है कि जो बिंदियां या जो पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे, क्या वो मेरा सॉल्यूशन है? वो मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो उस केस में जब जो लाइन पे मेरे सॉल्यूशन नहीं है, तो वो जनरली लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो डॉटेड लाइन होती है। ऐसे वो लाइन ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। अगर आप डॉटेड लाइन देखोगे ना, जो ब्लैक मैंने सॉलिड लाइन बनाई है ना, ये लाइन सॉलिड नहीं होगी। लाइन कैसी होगी? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? पॉइंट्स ऑन द लाइन, पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट ए पार्ट ऑफ माय सॉल्यूशन, इसका ये मतलब है। और अगर सॉलिड लाइन है जैसे यहां पे हमने बनाया, तो ये किसका सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है 2x, ये सॉल्यूशन है 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है किसका सॉल्यूशन है? ये 2x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इन दोनों को कंबाइन जब करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? सॉलिड लाइन एंड डॉटेड लाइन का ही मतलब, यहां तक बात समझ में आती है? अब ये है लीनियर, फर्स्ट वाली लीनियर इनइक्वालिटी, यानी इस लाइन का जो सॉल्यूशन है वो ये पीली पीली जो एरिया है, वो वाला एरिया है। ठीक। अब मैं मान लो सेकेंड इक्वेशन ये थी 5x - 9y = 10। अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x है, ये y है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे -10/9 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 2 आएगी। इंसिडेंटली 2 आ रही है, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, मैं 2 लेना नहीं चाहता हूं, मैं यहाँ पे क्या ले लूं, 4 ले लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो -10/9 आएगा, y की वैल्यू 0 पुट किया तो 2.5 आ जाएगा, है ना, 2.5। तो 2.50 यहाँ पे आएगा, और -10/9 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग था, लगभग यहाँ पे आएगा। तो इस लाइन का मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, और ये मेरा x एक्स, ये कहां तक जाएगी? इन्फिनिटी। अगर मुझे सॉल्यूशन, अगर इन दोनों को सॉल्व करना होता तो मेरा आंसर ये होता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? तो मेरा आंसर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट हमें सॉल्व क्या करना है? हमें सॉल्व करना है ये है, और मान लेते हैं मुझे सॉल्व करना है 4x - 9y इज लेस देन लेट्स से और इक्वल टू 10, मान लेते हैं ये सॉल्व। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा वो इस लाइन के या तो ऊपर होगा और या तो नीचे होगा। ये बात समझ में आ रही है? मेरा जो आंसर होगा वो तो या तो इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे। ये कैसे पता चलेगा ऊपर या नीचे? ओरिजिन टेस्ट। 0 0 पुट करेंगे, 0 - 0 इज इट लेस देन और इक्वल टू 10? यस। क्या 0 0 मेरे सॉल्यूशन का पार्ट है? वो लाइन के ऊपर है या नीचे है? ऊपर है ना। ये मेरा सारा समझ में आ रहा है? अब ये इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई बोले कि मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को, इन दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाला एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा? ये वाला जो कॉमन है ना, ये जो V बन रहा है नीचे से, ये। तो जो मेरा आंसर बन रहा है बेसिकली वो ये है, मान लेते हैं दिस इज माय कंप्लीट आंसर। समझ में आ रहा है? ये ग्रीन वाले जो भी कॉमन इलाका है दोनों का, दैट इज माय सॉल्यूशन सर।
इसको बोलते हैं सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक, अब एग्जाम में कोई ऐसा तो सॉल्व करवाएगा नहीं, ग्राफ तो बनेंगे नहीं, तो क्वेश्चन क्या बनेगा ये समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये बनेंगे, वो ये बोलेगा कि मान लेते हैं हम पर्स बनाते हैं, बटुआ बनाते हैं, और हम दो तरह का पर्स बनाते हैं, पर्स 1 और पर्स 2। पर्स 1 में मुझे 10 रुपए का फायदा होता है बेचने पे, और पर्स 2 में मुझे 12 रुपए का फायदा होता है। लेकिन पर्स 1 बनाने के लिए मशीन 1 पे ये 6 घंटे लेता है, और इसको बनाने के लिए मुझे 8 घंटे लगते हैं। पर्स 1 मशीन 2 पे 3 घंटे लग जाते हैं, और इस पे 2 घंटे लग जाते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि पहला पर्स अगर बनाएंगे तो पहली मशीन पे वो 6 घंटे लगेगा और दूसरी मशीन पे 3 घंटे लगेगा। जो दूसरा पर्स बनाएंगे वो पहली मशीन पे 8 घंटे लगेगा और दूसरी मशीन पे 2 घंटे लगेगा। पहले पर्स बनाने में मुझे 10 रुपए का फायदा है, दूसरे वाले पर्स बनाने में मेरे को 12 रुपए का फायदा है। जो मेरे पास टोटल टाइम अवेलेबल है मशीन 1 पे, वो मान लेते हैं 100 घंटे हैं। यानी मैं मशीन 1 पे कितने घंटे काम कर सकता हूँ? 100। और इस पे भी मैं मान लेता हूं मैं 100 ही घंटे काम कर सकता हूँ, मानने में तो कोई हर्ज नहीं। वो कुछ भी होता है, 120 घंटे भी हो सकते हैं, अवेलेबल टाइम हमारे पास ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है, या मैं चेंज कर देता हूं, इसको मैं 80 घंटे ले लेता हूं ताकि आपको अलग बता सकूं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप 2 आइटम्स बनाते हो, दोनों आइटम पे अलग अलग प्रॉफिट है। ठीक है, अब अलग अलग प्रॉफिट है, लेकिन दोनों आइटम अलग अलग मशीनों पे बनती हैं। क्वेश्चन ये है कौन सी आइटम कितनी बनाई जाए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? कौन सी आइटम कितनी बनाई जाए ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो मान लेते हैं अपन P आइटम्स बनाते हैं X क्वांटिटी में और Q ये बनाते हैं Y क्वांटिटी में। तो मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है? प्रॉफिट, यानी 10x प्लस 12y की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। नॉर्मली इसको कहीं किताब में अगर देखोगे तो ऐसे Z मैक्स बोलते हैं इसको, एक फंक्शन है Z मैक्स, यानी इस एक्सप्रेशन को मुझे ज्यादा से ज्यादा बनाना है। तो आप सोचोगे यार ज्यादा बनाना है तो y पे तो ज्यादा 12 y ज्यादा बनाएंगे क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है कि भाई इसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इसको ज्यादा बना लो। क्यों? क्योंकि इसमें मशीन की लिमिटेशंस है। आ रही बात समझ में? अब इसमें लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस, उस लिमिटेशन को हम कंस्ट्रेंट के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अपने आप में क्वेश्चन बनता है हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर। क्या क्वेश्चन बनता है? कंस्ट्रेंट, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर। तो पहली कंस्ट्रेंट क्या है? मान लेते हैं अपन ने एक्स बनाया, तो पहली मशीन पे एक पर्स बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, एक्स पर्स बनाने के लिए 6x आवर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक पर्स बनाने के लिए 8 घंटे और वाई पर्स बनाने के लिए पहली मशीन पे घंटे नहीं 8 समझ में आ रहा है? इतने घंटे लगे मशीन 1 पे। दोनों का जो सम होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि टाइम इतना ही है हमारे पास, इनका सम या तो 100 घंटा हो या उससे कम हो। उसी तरीके से ये फर्स्ट मशीन 1 पे आ गया। मशीन 2 की क्या कंस्ट्रेंट है? कितनी कंस्ट्रेंट हो गई? 2। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, तो क्या बताओगे? और भी हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पर्स या तो बनाओगे या नहीं बनाओगे। अब इसके हिसाब से तो एक्स को नेगेटिव कर दोगे, वाई को बढ़ा दोगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या नेगेटिव कर सकते हैं किसी चीज को? नहीं। तो कंस्ट्रेंट हो गई 4। ये अपने आप में क्वेश्चन है बाय द वे। समझ में आ रहा है? सिंप्लेक्स मेथड वगैरह शायद इंजीनियरिंग में बोलते हैं, कहीं पढ़ाते हैं इसको। तो ये चीजें हो गई। अब हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 10x प्लस 12y मैक्सिमम हो जाए। ऐसे मिनिमाइजेशन फंक्शन भी बोलता है। जैसे कॉस्ट, अगर कॉस्ट की बात होती है तो हम क्या कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज। प्रॉफिट हमेशा क्या करना चाहते हैं?
मैक्सिमाइज, तो ये जेड मैक्स फंक्शन है। ऐसे ही हमारा जेड मिन भी होता है, जेड मिन यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में आ रही बात? अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी आपको मेथड बताया वही लगेगा। क्या? ग्राफ। अभी बताता हूँ एग्जाम में कैसे होगा, यहाँ तो समझ लो कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका इक्वेशन बनाते हैं, मान लेते हैं इसकी रेड कलर की इक्वेशन बनाते हैं एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू 0, तो ये 100/6, 100/6 यानी कि 16.66। इसकी हाँ 100/8 होगा, सॉरी, तो 12.5 हो जाएगा, 12.5। इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो ये 16.66, ठीक है। एक्स की वैल्यू 16.66 मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया 16.660, और ये वैल्यू 12.5 आ गई, मान लेते हैं यहाँ आ गई, तो 0, 12.5। तो एक इक्वेशन मेरी मोटा मोटा ये बनेगी। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू बनेगी 40, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी 80/3। 80/3 कितना बन जाएगा? 26.66 समथिंग, ठीक है। तो 26.66 लगभग ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 26.660, और ये पॉइंट आएगा 040, है ना, यहाँ जा रहा है। क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मेरे को चाहिए, मैं चाहता हूं वैल्यू 0, इसकी वैल्यू आए कम, ठीक है, 26 से 12.5 से भी कम आनी चाहिए y की वैल्यू 0 पुट करने पे। तो मैं इसको बना लेता हूं 13। फिर ऊपर वाला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? नहीं गड़बड़ क्यों होगा, ठीक है 13। तो ये 13 बना देंगे तो क्या बनेगा? 80/13 कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट, x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 6.15 आ जाएगी। y की वैल्यू 0.40 है तो ठीक है, 0.40, ये तो 0.40 आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 40, y की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो ये 6.15 आ गया, तो 6 पॉइंट ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है 6.15। अब इसकी इक्वेशन बनेगी मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब अगर रेड लाइन की हम बात करें तो क्या 0 सेटिस्फाई करता है इसको? रेड लाइन की बात करें, क्या 0 लेस देन 100 है? तो रेड लाइन के आंसर मेरा नीचे, नीचे यानी कि ये पूरा मेरा आंसर है, ठीक। क्या ग्रीन लाइन के नीचे मेरा सेटिस्फाई करेगा 0 लेस देन 80? कॉमन एरिया बहुत सारा हो गया, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट साइड में, फर्स्ट ये दोनों क्वाड्रेंट आएगा, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 कौन सा आएगा? ऊपर वाला क्वाड्रेंट। तो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? फर्स्ट। इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है कि मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन सेट बनेगा वो ये बन रहा है, ये वाला। समझ में आ रहा है? मैं पेंसिल से बनाऊं तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अब मेरा आंसर कहां लाई करेगा आपको पता है? इन्हीं के बीच में लाई करेगा, ये सारे मेरे सॉल्यूशन सेट हैं। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है मुझे या तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, या तो मैक्सिमम या मिनिमम पता है कहां मिलेगा तुम्हें? मान लो मैंने कहा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सारी वैल्यू यहां और यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और फिर मैंने कहा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या इस क्वाड्रेंट में होगा, ऊपर की तरफ।
कॉमन एरिया क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू, या तो इस पॉइंट पे मिलेगा आंसर, या तो इस पॉइंट पे मिलेगा, या तो इस पॉइंट पे मिलेगा, या इस पॉइंट पे मिलेगा। यानी मेरे 4 पॉइंट हो गए, 0 0 एक पॉइंट, 6.150 सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों को सॉल्व करके, और चौथा पॉइंट क्या है? 0 12.5। समझ में आ रहा है? इसको इन चारों पॉइंट में से एक आंसर होगा इसमें से। ये तरीके, जब पहले कैट में आया था तो इसमें 2 क्वेश्चन आते थे, 2 या 3। अब ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है फॉर अ सिंगल क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन। तो हो सकता है सिर्फ कंस्ट्रेंट पूछ ले है। हाँ, ये डाल के देखना पड़ेगा है। हाँ वो ठीक है, तो क्लोजेस्ट पॉसिबल इंटीजर देख लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी तो मैंने तो रैंडम क्वेश्चन बनाया ना, उसमें तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब एग्जाम में कैसे करें, अगला सवाल ये है। अब अगर एग्जाम में उसने एक्स और वाई का ऑप्शन दिया, तो सबसे पहले आप कंस्ट्रेंट तो बनानी पड़ेगी, और ये जेड मैक्स बनाना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि पहले उस ऑप्शन को इसमें डाल के देख लो क्या वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और फिर चेक कर लो कि ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है। या फिर मान लो अपने एक्स और वाई की एक वैल्यू ले ली, इसमें चेक किया क्या कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दो। अगली वैल्यू पकड़ो, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो डिस्कार्ड कर दो। अब चांसेस है 4 में से 2 सेटिस्फाई करेगा, 2 नहीं करेगा। वो जो 2 सेटिस्फाई करेंगे वो इसमें डाल के देख लो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो अपना आंसर होगा। फंसेगा कब? फंसेगा अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। उसने बोल दिया एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अगर 20 दे दिया तो 20 तो बहुत तरीके से हो सकता है, 1 19 2 18, कितने ट्राई करोगे, बहुत पंगा हो जाएगा। इसलिए सारा मेथड सिखा रहा हूँ। ये हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन बनता है लीनियर इनइक्वालिटी में। समझ में आ गया? ऐसा कुछ दिया नहीं है भाई इस किताब में, टेंशन मत लेना। अभी तक हमने शुरू नहीं किया इसको, वही देख रहे हैं ना, तभी मैं पूछ रहा था। क्लियर है? लीनियर इनइक्वालिटी, दिस इज द कंडीशन इनइक्वालिटी में। ये इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ये इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में। ठीक, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में मान लेते हैं इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने किया है पिछली क्लास में। हाउ डू यू सॉल्व इट? हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अपन x कॉमन निकाल के x माइनस 3 करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल के x माइनस 3 करते हैं, इन दोनों में से अपन x माइनस 3 कॉमन निकाल के x माइनस 2 निकाल के इक्वल टू 0 करते हैं। x की वैल्यू क्या बन गई? 2x की वैल्यू 3। ये मेरा सोल्यूशन होता है, ये हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, मान लो ये बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन और इक्वल टू। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। अब हम कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। मान लो मैं सॉल्व, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मेरा बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि सॉल्व कैसे होता है। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ये भी बता देता हूं, उसके लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे, बट फिलहाल समझने के लिए, ताकि बाद में जब मॉड्यूलस करें तो आपको दिक्कत ना हो। किन्हीं 2 चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब होगा जब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी नेगेटिव हो जाए, ये भी नेगेटिव हो जाए। 2 केस बनेंगे। केस 1 में मान लेते हैं, मैंने यहाँ केस 1 बनाया, दोनों पॉजिटिव लिया, इसका मतलब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 यानी x इज ग्रेटर देन 2, दिस मींस x इज ग्रेटर देन 3, यही बनेगा। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं इसको समझाने के लिए
x ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब है? मान लो ये मेरा 2 है, ये 3 है। x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये सारी वैल्यूज, और x ग्रेटर देन 3 का मतलब ये सारी वैल्यूज। अब इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए हमें? ये वाली। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि कॉमन है। एग्जाम के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपने 2.5 ले लिया, 2.5 ले लिया। अगर अपन इसमें 2.5 पुट करेंगे तो 2.5 माइनस 2 तो पॉजिटिव है, लेकिन 2.5 माइनस 3 नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से अपने एक ही ऑप्शन लिया। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। केस 1 में से ये लिया। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में x माइनस 2 इज लेस देन 0, सो x इज लेस देन 2, x माइनस 3 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 3। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लो हमने ये बनाया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 से कम ये, और 3 से कम ये। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे अपन? कॉमन वाला, 2 से कम। यही बात है। तो इन चारों केसेस में से एक सॉल्यूशन आया माइनस इंफिनिटी से 2, और यहां से आया 3 से इंफिनिटी। हमें दोनों चाहिए, इसलिए यूनियन। तो मेरा आंसर हो गया 3 से इंफिनिटी यूनियन, इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से। अब यहां तक बात समझ में आती? हाँ बेटा बोल, क्या नहीं आ रहा? ओके। अब यहाँ पे जब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इस ब्रैकेट का है। इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इज नॉट ए पार्ट ऑफ माई सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने x को 2 रख दिया तो क्या ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 रहेगा? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर क्या हम 3 रखेंगे तो क्या ग्रेटर देन 0 रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 और 3 को ओपन में रखना है। अगर मैं ये क्वेश्चन बोल देता कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब मेरा आंसर कैसा था? माइनस इंफिनिटी से 2, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का बड़ा चक्कर पड़ेगा, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में। आ रही बात समझ? ये इसका मेथड है, मैथमेटिकल मेथड मॉडल है कि आंसर कैसे निकलेगा हमारा। बोल, क्या पूछ रहे हो? था ओपन ब्रैकेट मतलब, अच्छा देख, ऐसे मैंने बोला 3 से इंफिनिटी, कितने 3 हो गया? 3 से इंफिनिटी 3, 3.25, 3.5, पौने 4, 4, 5, सब सारी वैल्यू कहां तक लेनी है? इंफिनिटी। अब क्वेश्चन है क्या 3 को लूं या ना लूं, ये सवाल है। 3 को लूं या ना लूं? अगर मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, यानी x3 इज ए सॉल्यूशन, तो यहां पे 3 डालूंगा तो 0 नहीं कर देगा, और हमको क्या चाहिए था? बड़ा। तो क्या 3 लेना है? नहीं, नहीं लेना है। के लिए लिखेंगे कैसे? ओपन, गोल वाला ब्रैकेट ओपन, ये 3 नहीं लेना। लेकिन अगर ये इक्वेशन होता तो यहां पे इक्वल टू 0 चलेगा, तो 3 इसमें अगर 3 डाल दे तो 0 आ जाएगा, क्या वो चलेगा? चल, तो 3 लेना है, इसलिए इसको ऐसा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं। क्लोज्ड यानी वो लेना है, ओपन यानी छोड़ना है उसको, बार बार में दो। ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। आगे समझ में बात? एक कंडीशन तो ये बनेगी, यानी हमने कौन सी देखी? ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये दोनों देख लिया। अब हम देखते हैं लेस देन 0। मान लेते हैं मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। वंस अगेन हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है। इसको नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे, ऐसे ही दो केसेस बनाएंगे, दोनों केस में कॉमन निकालेंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो है अंडरस्टैंडिंग। करनी है या कर लोगे इसको प्लस माइनस वाला सारा ट्रायल एंड एरर? कर लोगे? कर लोगे ना? अब इसका एग्जाम में कैसे करना है ये समझना है आपको, ठीक? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, हमको यहां तक तो करना पड़ेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है? हाँ, प्लस 6 का। हम इसमें नंबर लाइन, हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे?
क्रिटिकल। ये कैसे पता चलेगा? इसको 0 मानो, इक्वल टू 0, तो अगर x माइनस 2 को 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसको इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 2 and 3 आर क्रिटिकल पॉइंट्स, जिसको सॉल्यूशन हम निकालते हैं उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ लिखो, मान लेते हैं 2 यहाँ आएगा नंबर सिस्टम में, तो 3 यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? ये 4 है, ये 1 है, ये 0 है, ऐसे ये नंबर सिस्टम्स की लाइन है। हमारे क्रिटिकल पॉइंट है 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें इसको कैसे करना है? अपना हाथ ऐसे करो सब लोग, करो करो, क्या होगा, कर लिया। अब मेरा जो इनइक्वालिटी है वो कैसी है? बड़ी है। कैसी है इनइक्वालिटी? करके दिखाओ। बड़ी है ना? अच्छा ओके, बड़ी है, ऐसे समझ में आ रहा है? हाँ, तो बड़ी है का मतलब ये इधर और ये इधर, तो यही आंसर हो गया। आंसर देख, माइनस इंफिनिटी से 2 ये इक्वल टू है यूनियन 3 से इंफिनिटी, हो गया आंसर। यही तो आंसर है। देखो पर मैंने इतनी मेहनत करके नहीं निकाला था सारा, ये देखो। अभी करते हैं, अभी सारा करते हैं। यहां तक समझ में आ रही बात? अब इसके चक्कर में मत रहना सर ये पॉजिटिव है तो ऐसा ऐसा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता। उस केस में मेरी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या बनते? -2 एंड 3। कोई चक्कर नहीं, आंसर यही है बस। बेटा रुक जा अभी, ये प्लस प्लस आ गया, माइनस प्लस आ गया, ये भी हो सकता था आपका। उस केस में क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? -3 इधर आएगा और -2 इधर आएगा। ध्यान रखना, गलती मत करना, नंबर लाइन है ये है। -3 नंबर लाइन में ये क्वेश्चन है, ये नया एक्सप्रेशन है, नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। किसी और पॉलिटिक में ऐसा भी तो बन सकता है। क्रिटिकल पॉइंट माइनस माइनस आ गया तो भी आंसर यही होगा। इस चक्करों में मत रहना कि वो लेफ्ट में चला गया, राइट में चला गया। होगा, डाल के देख ले क्या चीज ये। अरे भाई ये तो क्वेश्चन इक्वेशन है, ये फंक्शन थोड़ी ना। अपने को दोनों को पॉजिटिव बनाना है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। किस वैल्यू में पॉजिटिव होगा? वो इस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, ये लिखा हुआ है देख। ये थोड़ी ना मैंने कहा अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं, अगर कोई वैल्यू तुमने -2 से कम ले ली तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा। अगर कोई +3 से कोई बड़ी वैल्यू ले ली तो ये पक्का पॉजिटिव आएगा, इसका ये मतलब है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया ऐसा जिसका एक्सप्रेशन ये है, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी ले ली तो पक्का पॉजिटिव आएगा, -2 से बड़ी ले ली तो भी पक्का पॉजिटिव आएगा, इसका ये मतलब है। क्रिटिकल पॉइंट लेना है, वहां रखना है और बड़ा है, बस काम खत्म। कोई चक्कर नहीं है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट होने दो। हाँ ओके, समझ में आ रहा है? हाँ क्या नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आया। इससे आसान तरीका क्या बताऊं मैं तेरे को? देख, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अपन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल लिखना पड़ेगा। मान लो ग्रेटर है तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि आप कुछ मत करो, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो ए और बी। अब ए और बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक, कुछ भी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर हमेशा यही होगा। नहीं अभी अभी ग्रेटर देन में तो कन्विंस हो जाओ। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू में इंक्लूसिव ब्रैकेट है, ओ एक्स गोल वाला ब्रैकेट है, ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं।
हाँ तो होगा ना, मैं कह तो रहा हूँ, ये देख ये इक्वेशन है, मान ले मेरे पास एक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, मान ली ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तूने, कैसे करेगी इसको सॉल्व? स्प्लिट करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसको x कॉमन लेगी तो x प्लस 2 बनेगा, इसमें 3 कॉमन लेगी x प्लस 2 बनेगा, यही सॉल्व करना है, समझ में आ रही बात? इसको सॉल्व करेगी तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आंसर, इसका शॉर्टकट क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसके, -3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट यहां बनेगा -3 -2, बस यही आंसर, माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन, क्लोज ब्रैकेट है भाई, क्लोज ब्रैकेट है बिल्कुल। पक्का समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ -3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ -1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, ऐसे ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब मान लेते हैं इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। वंस अगेन सॉल्व करके x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहां तक पहुंच जाओगे। अब अपने को आंसर निकालना है सीधा, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसके, +2 एंड करा, ये साइन कैसा है, छोटा है, निक्का सा छोटा, छोटा है ना, छोटा है, ये मेरा आंसर है। ऑल द वैल्यूज विच लाई बिटवीन 2 and 3 ब्रैकेट क्लोज्ड, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, इसलिए इंक्लूड करना है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन ये बनता तो मेरा आंसर बनता 2,3 ओपन ब्रैकेट, बस इतने में आंसर हो जाएगा आपका। क्या आते हैं, अभी कराऊंगा, टेंशन ना लो, सारा ही अभी कराऊंगा, इसमें नहीं है, किताब में नहीं है। नहीं मैं कर दूंगा, आप बैठो आधा घंटा फालतू। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। बट जैसे आपको पता है हमारी किस्मत कई बार साथ नहीं देती है, तो पंगा होगा, और पंगा ऐसा हुआ अपने साथ कि क्वेश्चन आ गया ये x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 8 7, 3 लिखना, नीचे लिख लेते हैं, ले और श्रद्धा खुश रहे, और बता क्या लिखना है, ठीक है। लेट अस से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मान लेते हैं, क्वेश्चन आता है, समझ में आ रही बात? अब ठीक है, अब अगर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना है तो या तो ऊपर वाले तीनों पॉजिटिव हो, नीचे वाले दोनों पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव आएगा, या इनमें से कोई भी दो नेगेटिव हो, बचे हुए 3 पॉजिटिव हो, यानी ये दोनों नेगेटिव बचे हुए 3 पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव बचे हुए 3 पॉजिटिव, कोई भी दो वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बचे हुए 3 पॉजिटिव हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी है कोई भी 4 नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो जाए। अब ये सारे जुगाड़ भी उठाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आंसर नहीं निकाल पाएंगे। अगर लॉजिकली करेंगे तो ऐसे मेथड तो वही है, हमें वैसे नहीं करना है, हमें जैसे करना है मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आता है कैसे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? Now we have to solve it to get an answer. So what do I do is I take a number line. I identify all critical points. ये बनेगा 3 मान लेते हैं, ये है मेरा -2, ये है मेरा -7, ये मेरा बनेगा कहीं ना कहीं +8, और कहीं ना कहीं बनेगा मेरे पास -3, ठीक है। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये आगे जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, समझ में आ रहा है? बनाता हूँ, रुको अभी रुको, क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या आइडेंटिफाई किए, यूजिंग एक्सट्रीम राइट साइड डिजिट, यानी ये वाली, यू टेक दिस वैल्यू एज पॉजिटिव
You take this value as negative. You take this value as positive. You take this value as negative. You take this value as positive. You take this value as negative. ठीक. राइट साइड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव करा. हमारे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ओवरऑल या नेगेटिव वैल्यू चाहिए? तो जो जो इलाके पॉजिटिव के हैं ना, वो मेरा आंसर है. क्वेश्चन सॉल्व. जैसे कि पॉजिटिव, यहां कहां से पॉजिटिव? -7 से -3. वो क्लोज या ओपन ब्रैकेट? ओके. यूनियन और क्या है? -2 से 3 क्लोज. यूनियन 8 से, ये आंसर है, बट ये गलत है फिलहाल, क्योंकि इक्वल टू है, ब्रैकेट क्लोज तो लगेगा, लेकिन यहां प्रॉब्लम आएगी. अगर हमने x इज इक्वल टू 8 क्लोज ले लिया तो 8 तो डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, एंड डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ये बनेगा ओपन ब्रैकेट. बिल्कुल सही. -3 नहीं होगा. x की वैल्यू -3 इसको 0 बनाएगा. नीचे ऊपर तो 0 बन सकता है ना. अब ब्रैकेट्स, अगर ये क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन में ये ब्रैकेट होंगे और एक में जो पहले वाले लिखे थे वो होंगे, तो ध्यान रखना ब्रैकेट्स का. ये आंसर है आपका. सर क्या मतलब? हाँ, फिर से क्लोज कर दिया. ठीक है. अब क्या? कोई सरप्राइजिंग आंसर है इसमें? पंगा ये हो सकता है, अगर मैं यहां स्क्वायर कर दूं तो, या पावर 4 कर दूं तो, इसका मतलब क्या है? अगर देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, इस बात का ये मतलब है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट -2 बन रहा था, नहीं, अगर चूंकि पावर 2 आ गया, x के अंदर अपन कुछ भी डालें, -1, -10, -100, +20, +2 करके स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होएगा. इसका मतलब ये है, इस सारे सिस्टम में इसका जो रोल है वो तो खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि x कुछ भी डालो पॉजिटिव ही आना है, और हमें तो पॉजिटिव ही चाहिए. इसका मतलब इसका रोल खत्म हो गया. इसका रोल खत्म होने का मतलब है ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं बचा. ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं बचा, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये पूरा उस केस में पॉजिटिव, फिर ये वाला नेगेटिव, और फिर ये वाला पॉजिटिव. ये अगर ऑड आ जाए तो क्रिटिकल पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि ऑड, मान लो तुमने -4 डाला तो -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर हमने क्यूब है तो -2 का क्यूब करोगे तो -8 ही आएगा. रुक जा, अभी आप समझाता हूँ. हाँ भाई बोलो. सर इसमें -इन्फिनिटी भी फिर ओपन लेना पड़ेगा क्या? -इन्फिनिटी भी ओपन लेना पड़ेगा इसमें फिर? हाँ, -इन्फिनिटी, अपन इन्फिनिटी हमेशा ओपन लेते हैं, पता नहीं क्यों लेते हैं, बट लेते हैं. एक रीजन ये कि हमें पता नहीं इन्फिनिटी है क्या, तो इंक्लूड नहीं करते हैं उसको, इसलिए इन्फिनिटी वाला हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं अपन. नहीं सर, मैं स्क्वायर वाले में कह रहा हूँ, फिर -इन्फिनिटी भी आएगा. हाँ बता, क्या समझना था तेरे को? इसमें भी रिमोट होना चाहिए अपना आजकल. कोई नहीं, अब पैसे वैसे आएंगे तो चेंज कराएंगे. सर आप बोला क्यों करते भाई?
ठीक है। उसका क्वेश्चन है तो तू क्या पूछ रही है, पूछ लेगी। अच्छा बता भाई, कोई नहीं। उसको इंक्लूड करना है ना आंसर में, यही कह रही होगी। x की वैल्यू -2, मैं तो कह दिया इसको भूल जाओ। तू कह रही है सर x की वैल्यू -2 होगी तो एक्सप्रेशन 0 होगा, तो वो इंक्लूड होना चाहिए आंसर में। एक बात सुन, ये देख पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है, तो -2 इंक्लूड नहीं हो गया पॉजिटिव में। एरिया नहीं बदल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो -2 इंक्लूड होना चाहिए, हो गया इंक्लूड। ये पूरा एरिया मेरा क्या है, ये पूरा एरिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आ गया ना -2। क्या क्यों हट जाएगा, लिखा तो है। हाँ वो नेगेटिव हो जाएगा, -3 से -7 जो पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो जाएगा इस वाले केस में। हाँ वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं है। हाँ अब मैं इसका अगर आंसर लिखूं तो ये बनेगा, आंसर बनेगा -∞ से -7 ओपन इंक्लूडेड यूनियन, ये नहीं है, फिर पॉजिटिव है, कहां से है, -3 से +3 तक। अब -3 इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में है, +3 इंक्लूडिंग है क्योंकि न्यूमरेटर में है, ठीक। यूनियन पॉजिटिव 8 टू इंफिनिटी, 8 इंक्लूडिंग नहीं है और ये भी इंक्लूडिंग नहीं, उसका आंसर ये बनेगा। तो जो तू -2 की बात कर रही है वो इसके अंदर आ गया। स्क्वायर वाले में ऊपर आंसर लिख दिया मैंने, देख ले क्या आएगा। ये रहा, हाँ इंफिनिटी आएगा, -∞। अगर स्क्वायर होता, पावर 4 होता, जिसमें इवन पावर लग गई उसको भूल जाओ। बस ये ध्यान रखना, मान लो इवन पावर यहां लग गई तो इसको भूल तो गए, बट ध्यान रखना कहीं गलती से 8 इंक्लूड ना हो जाए। जैसे यहाँ पे -2 इंक्लूड हो गया चलेगा, -8 अगर +8 इंक्लूड हो गया तो पंगा हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो पूरे सिस्टम में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है आपने। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? उत्तर अब कौन सा करना है, ये स्क्वायर हटाना है या 4 लगाना है, कैसे? रुक जा, 4 लगा देता हूं और ऊपर वाला रहने दूं या छोड़ ले लूं? ऊपर वाला भी ले लूं। ले भाई, जैसी श्रद्धा आपकी। ठीक है, अब मान लो अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना है, मैं सीधा इसका आंसर लिखूंगा अब आपके लिए। क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब चूंकि पावर 2 है, पावर 4 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको भी भूल जाऊंगा, मेरे लिए भी कंसिडरेशन में नहीं है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या बनेंगे, ये तो -7 बनेगा, इधर बनेगा मेरा -3 बनेगा, इधर +3 बनेगा और इधर हो गया क्या, 3 ही तो है। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे आंसर क्या होने चाहिए, मेरे आंसर होने चाहिए -7 से -3, ये क्लोज ब्रैकेट होगा, ये ओपन होगा क्योंकि मैं -3 यहां रख नहीं सकता, यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये क्लोज्ड होगा, ये ओपन होगा। जब हम 3 से इंफिनिटी की बात करते हैं तो 3 से सारी बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल, इसमें 8 भी आ गया, बट अगर मैंने x को 8 रखा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब इसमें से मुझे 8 माइनस करना है, ये इसका आंसर है। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में ऑप्शन के तौर पे, यूनियन 3 से 8, 3 इज इंक्लूडिंग, 8 इज एक्सक्लूडिंग, यूनियन 8 से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग, ये भी हो सकता है। So these are two representation of that. तो जो मैं कह रहा हूं ना, डिनोमिनेटर में ध्यान रखना है कि भैया ये वैल्यू गड़बड़ ना करे, वो ये है।
पल्ले पड़ रही है बात सभी के? ठीक है, ओके। अभी ठीक है, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं मॉड्यूलस। अब हम करते हैं मॉड्यूलस। बोलिए, इनइक्वालिटी समझ में आई? वो लीनियर इनइक्वालिटी थी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी, ये एनी लेवल ऑफ डिग्री इनइक्वालिटी अगर आएगी तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं मॉड्यूलस। पहले मैं मॉड्यूलस समझाता हूं, फिर मॉड्यूलस इक्वालिटी समझाता हूं, फिर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी समझाऊंगा। ये तीनों चीजें समझनी है। अब मॉड्यूलस इज अ फंक्शन। व्हाट इज मॉड्यूलस? इट इज ए फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इट इज सो डिफाइंड कि मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू हमें एक्स लेनी है इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड एक्स की वैल्यू अपने को माइनस ऑफ एक्स लेनी है इफ एक्स इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन है मॉड्यूलस की ना। लेस देन इक्वल टू में तो आना गया पॉजिटिव। mod of x is equal to minus x if x is less than 0 and it is equal to plus x if x is greater than। अब ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मतलब वो है, दिमाग की दही बनती है इसमें। कुछ नहीं, मैं तो बता ही नहीं अभी तक कुछ। फंक्शन वर्ड है बस, भूल जा, कुछ नहीं है। फंक्शन इज लाइक ऐसे ही, मतलब फंक्शन जा रहे हैं अपन खेलने कूदने, वैसा फंक्शन है। मतलब फंक्शन में जब हम जा रहे हैं, ये कह रहा है कि ये मॉड्यूलस एक फंक्शन यानी एक डब्बा है, ठीक है। अगर इस डब्बे के अंदर पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, तो अगर अपन डब्बा हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डब्बे के अंदर नेगेटिव चीज है, समझ में आ रहा है? नेगेटिव चीज मतलब 0 से छोटी चीज है, तो जब अब डब्बा हटाएंगे तो सामने माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे जो बाहर निकलेगी चीज वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब इस बात का मतलब ये है हिंदी में, डब्बे के अंदर 2 है, अब 2 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना, 2 का 2 हो गया। लेकिन अगर डब्बे के अंदर नेगेटिव चीज है, डब्बे के अंदर, तो जब ये डब्बा हटाएंगे तो उसके आगे मुझे माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसका ये मतलब होता है। हाँ, अगर आपको ठीक है, अभी ऐसे समझना है कि अगर ओहो ये क्या है, ऑन नहीं है क्या? इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर बियर मीठी लग रही है, अगर कड़वी लग रही है तो उसमें बाहर बियर में कुछ ऐड करो, माइनस ऐड करो ताकि वो मीठी हो जाए। आइवरी मिठाई पीना है, समझ गया? अगर अंदर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे? नेगेटिव लगा के इसके आगे जो रिजल्ट वैल्यू बाहर निकालिए उसके आगे, ठीक है? कुछ भी डालो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, मेकिंग सेंस? इसको ना बेसिकली हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डब्बे को से जो भी बाहर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, बस यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्यों होगा वो समझाना की जरूरत है, क्योंकि ये डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर डब्बे के अंदर वाली चीज नेगेटिव है
और डब्बा हटाएंगे तो उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो चूंकि अंदर वाली चीज नेगेटिव है और बाहर माइनस लगाया तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। ये डेफिनेशन है इसकी। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये एक क्वेश्चन ये भी, ऐसा करने की क्या जरूरत है, फिर बोल कर ही क्यों रहे इतनी नौटंकी। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, मान लो आपसे मैं पूछता हूं इस छत की हाइट कितनी है, मोटा मोटा बताओ। 20 क्या फुट, कितने फुट होगी? 10 फुट, 9 फुट, इतनी होगी, 9-10 फुट होगी। चलो 12, 12.5। हिसार में अगर मैं बोलूं कि पानी निकालना है अपने नीचे से, कितने फुट पे पानी मिल जाएगा? मिल जाएगा? हाँ, वैसे ये वाटर टेबल हमारा ऊपर है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ नहर, नहर से पानी आता है तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। अब एक बात सोचो, और आपके घर की हाइट कितनी होगी? हाँ मतलब ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से ऊपर कितना ऊंचा हाइट घर बना हुआ है तुम्हारा, ये पूछ रहा हूँ। 6 फुट का घर है? 4 फीट इतना होता है? नहीं, डीपीसी नहीं पूछ रहा मैं, तुम्हारे घर जो घर बना हुआ है कितने ऊपर, कितने मंजिल है? 11.5 फुट है। तो मान लेते हैं ये तेरा घर है, ये वाला, ठीक है, और ये तेरे घर का नलका है मान लेते हैं, हैंडपंप। पानी कहाँ से निकल रहा है, कितने फुट नीचे से? 20 फुट। और ये 12 फुट। एक बात बता, तूने इसको 12 बोला तो इसको -20 क्यों नहीं बोला? जब कोई चीज ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना भाई। वो तो घर तेरा ही है, तेरे घर पे पंप लगा होगा। हाँ मतलब माइनस फिर बोला क्यों नहीं उसने भाई? डेप्थ ही तो, पानी तो नीचे ही निकलेगा ऊपर निकलेगा। इन जनरली देखो, अब जब हम पूछते हैं भाई कुआं खोदा जी कितने फुट गहरा, बोले 50 फुट गहरा कुआं है, ठीक है। खड्डा खोदना है जी 40 फुट गड्ढा खोदना है। अब ये नहीं बोलते -40 फुट गड्ढा खोदना है, क्यों? क्योंकि गड्ढा है ना, ना ना ऐसा। हाँ, तो जब खड्डे की बात करेंगे तो खड्डा तो नीचे ही खुदेगा या ऊपर खुदेगा? नहीं, तो खड्डा इटसेल्फ इंडिकेट्स द डायरेक्शन, छत itself indicates the direction. So we are not interested in knowing the direction, we are only interested in knowing the magnitude. We are only interested in knowing the magnitude, and this magnitude is why we need this mod, ताकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता चले, साइन का हमें लेना देना नहीं है। ये इसका प्रैक्टिकल यूसेज है बेसिकली। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मॉड का डेफिनेशन समझ में आता है? मॉड एक्स यानी डब्बे के अंदर वाली चीज यूं की यूं बाहर आएगी अगर डब्बे के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। डब्बे के अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो डब्बा हटाने से पहले हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। मैंने कहा मॉड ऑफ x - 4 इज इक्वल टू 7 और हमें सॉल्व करनी है x की वैल्यू। ठीक, मैं पहले आपको एक सेंस समझाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक जो कोर क्या है, और फिर जो हम जनरली प्रैक्टिस में करते हैं वो समझते हैं। कोर इसका ये है कि अगर अंदर वाली वैल्यू यानी x - 4 को अपन 0 या 0 से बड़ा माने, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो जब ये डब्बा हटाएंगे, जब ये डब्बा हटाएंगे तो कुछ साइन चेंज करना है आगे पीछे ना। क्यों? क्योंकि हमने माना x की वैल्यू, x नहीं मतलब डब्बे के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी, इसके हिसाब से x की वैल्यू मेरी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और मेरी वैल्यू आ रही है 7 + 4, मेरी वैल्यू क्या आ रही है x = 11, और हमें चाहिए था x 4 से बड़ा। तो क्या ये मेरा वैलिड आंसर है? यस, ये मेरा वैलिड है, क्योंकि मेरा अकॉर्डिंग टू कंडीशन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 4 से, पहला। दूसरा, ये केस -4 0 से छोटा, बड़ा या छोटा। ये क्या हो रहा है? ये लाइट जाने से इसको क्या प्रॉब्लम है? तो ऑफलाइन को क्लाउड चलो, वो तो मैं डिलीट कर दूं। वो क्लाउड चलो, ठीक है यार, एग्जिट कर ले, क्यों हो रहा है? छोड़,
वो भी दिखा रहा है, हेवी और हेवी सिस्टम होना चाहिए जैसे लग रहा है। बहुत सारे क्लासेस होंगे, आने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, उसमें भी हो गया। तो ये सेकंड केस है, ठीक है। जब हमने इस डब्बे की वैल्यू को हो रहा है, तो ये x माइनस 4 इज लेस देन 0, देयरफॉर x हैज टू बी लेस देन 4। इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया, डब्बे के अंदर वाली वैल्यू को क्या माना, नहीं आगे मुझे माइनस तो क्या करना पड़ेगा, माइनस है, क्यों, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो -2 -7 से आपसे, तो क्या वैलिड आंसर है 3। अब इसको चेक करते हैं, मान लेते हैं, और मान लो आपने -3 डाला, तो -3 -4 कितना होगा, -7, मॉड लगाओगे -7 का क्या बन जाएगा, +7। तो ये मेरे दोनों आंसर्स हैं, ठीक। जब मॉड इज इक्वल टू 7 कर देंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, दिक्कत आएगी जब हम ज्यादा वैल्यूज लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा प्लस माइनस, इतना आसान नहीं आएगा। जो आएगा मैंने कि कंडीशनल क्वेश्चन आएगा, मॉड -4 मॉड, ठीक है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, मान लो टेक्निकली स्पीकिंग जब इसको खोलेंगे तो इसके आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, इसके आगे भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, इसके आगे भी प्लस माइनस, कितने केसेस बनेंगे, 8। अब ये दो तरीके से, ये दो तरीके से, दो तरीके से, तीनों काम करने, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, कितने बन गए, और नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये 8 केस बनेंगे। अब ऑब्वियसली 8 केस तो सॉल्व हो नहीं पाएगा एग्जाम, तो उस तरीके से तो हमें इसको करना नहीं है, तो उसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे करेंगे, हमें फंक्शन को अलग अलग लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मतलब है, मतलब है क्रिटिकल पॉइंट्स। एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा -7, 3 पॉइंट्स बनेंगे, समझ में आ रहा है, 3 पॉइंट्स अगर बनेंगे तो 4 इलाके बनेंगे। इस इक्वेशन का बिहेवियर इन चारों इलाकों में अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब है एक बार मुझे x की वैल्यू 4 से बड़ी माननी पड़ेगी, 4 टू इन्फिनिटी, दूसरे केस में मुझे जो वैल्यू है -3 से +4 माननी पड़ेगी, और तीसरे वाले केस में -7 से -3 माननी पड़ेगी, और चौथे वाले केस में -∞ से -7 माननी पड़ेगी। ये 4 केसेस बनेंगे अपने। तो पहला केस पकड़ते हैं, हमने क्या माना, x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी, तो हमारा एरिया होना चाहिए 4 से बड़ा, x की वैल्यू मैंने क्या मानी, 4 या 4 से बड़ा, मतलब 4 ऑनवर्ड्स। अगर x की वैल्यू 4 से बड़ा है तो ये डब्बा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो जब डब्बे को हटाएंगे तो बाहर पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो ये डब्बा हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। 4 से बड़ा है ना, x की वैल्यू नहीं पड़ रहा, इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x + 3 - 4 -1 + 6 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। x की वैल्यू क्या बन गई, 2। हमने क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट माय आंसर, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी, अब अगर यहाँ 2 से डाल के देखोगे ना तो ये इक्वल टू 12 नहीं आएगा, 2 ये बनेगा 9, 7 और 9 कितना होता है 16। हमें ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन मेरे को वैल्यू लेनी है यहां से, हमेशा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये डब्बा पॉजिटिव होगा नेगेटिव, माइनस लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर वाला चीज, मान लेते हैं वो है,
वो प्लस वाला केस खत्म हो गया, भूल जाओ उसको। वो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये केस 1 था। केस 1 में हमने माना कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, तो अगर हमारी वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल आउटकम ये बनेगा। इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। मैंने कंडीशन क्या मानी थी, x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो इक्वेशन बनाई थी। और फिर मेरा इक्वेशन से आंसर आया 2, तो इसका मतलब 2 मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मेरी वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कंडीशन थी। वैल्यू -3 से 4 के बीच में होनी चाहिए, है नहीं है पता नहीं, होनी चाहिए। तो अगर होनी चाहिए तो ये एक्सप्रेशन खोलेंगे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, और ये एक्सप्रेशन खोलेंगे तो ये बनेगा +x 4 और 3 10 12 होना चाहिए, -3 से -4। अगर इसको अपन यहाँ डालेंगे ना तो 12 आ जाएगा, चेक कर। -2 -4 6 और 6 12, ये वैलिड आंसर है। क्लियर है? इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, -7 से -3, ये मेरा केस 2। -7 से -3 लेंगे तो पहले वाला पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव, ये बनेगा -(x + 3). ये वाला केस ये भी नेगेटिव होगा, -7 से -3, यहाँ कुछ भी डाल दे, -3 डालेगा तो भी नेगेटिव आ जाएगा, -7 तो भी डाल देगा नहीं। तो वो आप पिछले वाले में ले चुके हैं ना, -3 से 4 में। हमें तो माइनस साइन लगा, इसके ये समझना है कि साइन के आगे माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। हमें डब्बे को देखना है पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, तो डब्बा पॉजिटिव तो नहीं होगा तो माइनस साइन। इसमें अगर इनमें से कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसको खोलने के लिए आगे माइनस का साइन लगेगा, इसके अंदर पॉजिटिव साइन आएगा। समझ में आ रहा है? -7 से माइनस कुछ भी रखोगे तो ये प्लस बनेगा, तो ये इक्वेशन बनेगी x + 4 + x + 7 x, ये 7 4 11 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 1 4 आ गया। x की वैल्यू क्या हो गई, क्या ही वैलिड आंसर है? -7 से -3 के -4 आएगा। अरे बस फ्यूजन क्या है बोलो? अभी ले रहे हैं उसको, कंफ्यूजन समझने दे, उसको नहीं आया। तो अगर -3 ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने साइन बाहर लगाते हैं। केस थर्ड में भी -3 और -7 में -3 भी इंक्लूड कर रहे हैं, जीरो आ जाएगा, तो चलिए आप साइन बाहर। तो देखो, जब तुम -3 से -7 लेके जाओगी तो -3 तो एक ही केस है, वो सेकंड में हो गया, तो उसके बाद उससे छोटे वाले चाहिए होंगे, उसके आगे तो नेगेटिव ही बनेगा ना, तो इसलिए माइनस लगाया। -(x -x) क्या note is having problem. Okay, so what do we have? निकाल लो आंसर जब तक ये मेरा पेन ऊपर से आता है। ये आ गया। तो मेरा कितना आएगा, प्लस x की वैल्यू आंसर नहीं बस ये दो क्लास में होगा। ये डिवाइड में कैसे आ सकता है तुम्हें बता। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है भाई, नहीं और आज क्लास डन।